Very good afternoon, everyone. Let us start our session with a short meditation. Get back comfortable with your spinal cord erect. Relax your shoulders. Relax your neck. And close your eyes. Bring power. God that created you, that created all of us. God is with us every moment. God is inside our heart. God is here. Finger Supreme Parent is here. Why is the need to worry or fear? Consciously surrender all your worries, all your problems at His feet. And remember, God is with you every moment. Realize God, your Supreme Parent. Hugging you tightly and saying, I am here, my child. There is no worry, no need to worry or fear. For I am your protector. I am your guardian. I am responsible for everything in your life. This hug, you can feel the warmth, God's presence around you. Now affirm inside your heart, I am God's child. God's powers, love, and blessings are a divine circle of protection around me. And say this to your Supreme Parent that I trust you and I surrender all the tensions and worries to you because I know you are my shelter, you are my relief, you are my home. Say thank you and feel gratitude in your heart. You can visualize God's hand upon your head, blessing you. Now this light, this shining light will guide you further throughout the day. And you can anytime just call or just remember your Supreme Parent
and He is here for you. God is with us and for us always and will always be. So stay happy because God loves you and wants you to stay happy always. Remember, in our life, happiness, sadness, and many situations. But like God is our constant companion, He gives His companionship at every weather, every situation. Likewise, you should also generate happiness constantly and feel easy. Thank you, thank you, thank you. Om Shanti. Let me share the screen. Is my screen visible to all? हाँ जी सिस्टर विजिबल है। चलिए आज हम अपना हेलो। सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप प्रीति सिस्टर? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि विजिबल है स्क्रीन। मेरी आवाज शायद ऑडिबल नहीं रही पहले जब बोली थी। नहीं थी, वो हल्की हल्की सुनाई दी थी। ठीक है। मेरा थोड़ा ओके ओके। वॉल्यूम कम था। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। हाँ। हाँ The जी। problem is rarely the real problem. जो प्रॉब्लम होती है वो रेयरली रियल प्रॉब्लम होती है। अब इस हेडिंग को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। लाइफ में कोई सिचुएशन आती है और हमें ऐसा लगता है ये सिचुएशन नहीं तो प्रॉब्लम आ गई है, बड़ी वाली प्रॉब्लम। बाय ऑथर कह रही है द प्रॉब्लम जिसको हम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं वो रेयरली ही रियल प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपने पास्ट में देखें तो हमने कई सारी चीजों के बारे में ऐसा सोचा होता है जब वो सिचुएशन हमारे सामने आती है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पर जब हम उसको ओवरकम करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं थी, ये तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसको ऑथर कैसे एलेबोरेट करते हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ। She was so concerned with her looks and especially with her teeth. She went from dentist to dentist, feeling each one had only made her look worse. She went to have her nose fixed and they did a poor job. Each professional was mirroring her belief that she was ugly. Her problem was not her looks, but that she was convinced something was wrong with her. There was another woman who had terrible breath. It was uncomfortable to be around her. She was studying to be a minister, and her outer demeanor was pious and spiritual. Beneath this was a raging current of anger and jealousy that exploded now and then when she thought someone might be threatening her position. Her inner thoughts were expressed through her breath, and she was offensive even when she pretended to be loving. No one threatened her but herself. तो दो एग्जाम्पल्स देखे हमने यहाँ कि एक कोई लेडी थी जो अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थी, स्पेशली अपने टीथ को लेकर। डेंटिस्ट के बाद डेंटिस्ट उन्होंने काफी सारे दिखाए पर हर बार उनका जो लुक था वो पहले बार से और ज्यादा खराब ही होते जा रहा था। उन्होंने अपने नोज पे फिक्स कराया पर उन्होंने भी जिन्होंने नोज नोज फिक्स किया वो भी काफी खराब तरीके से किया। तो जितने प्रोफेशनल्स के पास वो गई वो सब उनके खुद के बिलीफ को मिरर कर रहे थे। जो उनका खुद का इनर बिलीफ था कि वो अगली है, वो अच्छी नहीं दिखती है, तो उसी को हर प्रोफेशनल मिरर कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और सोचेंगे कि हमारी लाइफ में
जो चीजें फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हैं, या फिर जिस टाइप के लोग आ रहे हैं, अगर कोई सेल्फिश है या फिर कोई कैसा भी है, तो वो जो भी है ना, वो हमारे ही नर बिलीफ को लेकर के मिरर कर रहा है। अगर बार बार धोखा मिलता है, तो फिर हम खुद ही ऐसे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं खुद के ऊपर। हम खुद ही सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो उसके लिए हमें अपने बिलीव को, अपने इनर डायलॉग को चेंज करने की बहुत जरूरत है। जो प्रॉब्लम है, जैसे इस लेडी के साथ उनके लुक्स प्रॉब्लम नहीं थे, यानी जिसको उन्होंने प्रॉब्लम समझा था वो प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो कन्विंस्ड थी कि उन्हीं के साथ कुछ गलत है। फिर एक और वुमेन का एग्जाम्पल दिया गया था जिसकी ब्रेथ टेरिबल थी, और उनके अराउंड रहना अनकंफर्टेबल था, क्योंकि ब्रेथ अगर वैसे आए तो स्मेल। तो एक स्टडी कर रही थी मिनिस्टर बनने के लिए। उनका जो आउटर डिमीनर था, उनके लुक्स काफी अच्छे थे, पायस एंड स्ट्रेचर, पर उसके अलावा उनके अंदर में एक रेजिंग करंट ऑफ एंगर एंड जेलसी था, जो कि एक्सप्लोर्ड हो जाता था नाउ एंड देन, कभी भी जब भी वो सोचती थी कि कोई उनके पोजीशन को थ्रेटन कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि लोग उनसे आगे बढ़ जाएंगे, उनकी पोजीशन को ले लेंगे। तो ऐसा उनका नजरिया था। तो वो ऑफेंसिव हो जाती थी। वो प्रिटेंड करती थी कि वो लविंग है, पर वो ऑफेंसिव हो जा रही थी। तो जो ये थ्रेट है, जो फियर है, वो कहीं और से नहीं आ रहा था, वो खुद उनके अंदर से ही ये फियर आ रहा था। He was only 15 when his mother brought him to me with Hodgkin's disease and 3 months to live. His mother was understandably hysterical, difficult to deal with, but the boy was bright and clever and wanted to live. He was willing to do anything I told him to, including changing the way he thought and spoke. His separated parents were always arguing, and he really did not have a settled home life. He wanted desperately to be an actor. The pursuit of fame and fortune far outweighed his ability to experience joy. He thought he could be acceptable and worthwhile only if he had fame. I taught him to love and accept himself, and he got well. He is now grown up and appears on Broadway with regularity. As we learn to experience the joy of being himself, the paths and ways opened up for him. एक और एग्जाम्पल है, एक लेडी अपने एक 15 इयर्स के सन को लेकर के आती है जिनको हॉटकिंस डिजीज रहती है, और अभी उनके पास सिर्फ 3 मंथ रहते हैं जिंदा रहने के। तो जो उसकी मदर रहती है, वो अंडरस्टैंडेबली हिस्टेरिकल और डिफिकल्ट है। तो कि किसी का अगर बेटा ऐसे किसी बड़ी डिजीज से जूझ रहा हो, तो उसकी मदर का क्या हाल होगा। लेकिन जो लड़का था, वो 15 इयर्स का, वो काफी ब्राइट और क्लेवर था, और वो जीना चाहता था। और ऑथर उससे जो भी कहती वो करने को तैयार था। और ऑथर उससे अगर कहते कि वो जिस तरह से सोचता है, कहता है, उसका सोचने का, कहने का तरीका सब कुछ को चेंज कर सकता था। उसके जो सेपरेटेड पेरेंट्स थे, मतलब उसके मम्मी और पापा, वो लोग सेपरेट हो चुके थे और हमेशा आर्ग्यू करते रहते थे। इस वजह से उस लड़के को कभी एक सेटल्ड होम लाइफ नहीं मिली, और ये लड़का एक एक्टर बनना चाहता था। और ये जो परस्यूट ऑफ फेम एंड फॉर्चून है, ये काफी आउटवे कर रहा था इसकी एबिलिटी टू फील जॉय, टू एक्सपीरियंस जॉय। मतलब ये सोच रहा था कि ये जब एक्टर बन जाएगा, इसको फेम मिल जाएगी, नाम शोहरत मिल जाएगा, तभी ये खुश रह पाएगा। तो ऑथर ने ये समझाया कि खुद को एक्सेप्ट करो। ऑथर ने सिखाया कि खुद को लव और एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। तो इस तरह से उसने जब खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को प्यार देना शुरू कर दिया, तो वो ठीक हो गया। अब वो ग्रोन अप है, बड़ा हो गया है, और ब्रॉडवे में अपीयर करता है। उसने सीख लिया कि जॉय को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफ बीइंग हिमसेल्फ, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही खुद अपने आप में जॉय कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द पाथ्स एंड प्लेस ओपन अप फॉर हिम। Overweight is another good example of how we can invest a lot of energy trying to correct a problem that is not the real problem. We often spend years and years fighting fat and are still overweight. We blame all their problems on being overweight. The excess weight is only an outer effect of a deep inner problem. To me, it is always fear and a need for protection.
When we feel frightened and insecure or not good enough, many of us will put on extra weight for protection. ऑथर कहती है जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, वो ऐसा क्यों होता है? उनकी इनर बिलीफ की वजह से। ज्यादातर उसमें देखा गया है कि वो डरे हुए होते हैं, उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। इस वजह से वो ओवरवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो गुड इनफ नहीं है, और जब वो ओवरवेट हो जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी की बाकी प्रॉब्लम्स का सारा ब्लेम अपने ओवरवेट होने पे डाल देते हैं। To spend our time berating ourselves for being too heavy, to feel guilty about every bite of food we eat, to do all this when we gain weight is just a waste of time. 20 years later, we can still be in the same situation because we have not begun to deal with the real problem. All that we have done is to make ourselves more frightened and insecure, and then we need more brutal protection. तो जो लोग ओवरवेट होते हैं वो खुद को बिरेट करते रहते हैं, खुद ही अपने आप को, मतलब बिरेट करना क्या होता है, खुद अपने आप को जैसे कम समझते हैं वो। और वो खुद के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा हेवी है, और गिल्टी फील करते हैं जब भी वो एक बाइट खाते हैं फूड का, तो वो बार बार गिल्टी फील करते रहते हैं। तो ये कांस्टेंट, तो वो अपने आप को कंप्लेन करते रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब भी वो गेन करते हैं वेट और ज्यादा, तो वापस उसको वो काउंट करते रहते हैं। तो ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑथर कह रही है कि 20 साल बाद भी आप सेम सिचुएशन में ही होंगे अगर आप रियल प्रॉब्लम से डील नहीं करते हो। तो इस तरह से ये लोग क्या होते हैं, और ज्यादा फ्राइटेंड और ज्यादा इनसिक्योर होने की वजह से और ज्यादा उन्हें प्रोटेक्शन की नीड होती है, जिस वजह से और ज्यादा वेट उनका बढ़ जाता है। सो आई रिफ्यूज टू फोकस ऑन एक्स्ट्रा वेट और ऑन डाइट्स, पर डाइट्स डू नॉट वर्क। The only diet that does work is a mental diet, dieting from negative thoughts. I say to fans, let us just put that issue on one side for the time being while we work on a few other things first. तो जो लोग एक्सेस वेट के साथ आते हैं, ऑथर उनके साथ कैसे डील करती है? उन्हें कोई डाइट नहीं सजेस्ट करती है, क्योंकि डाइट यहाँ पे काम नहीं करेगा। जो फूड वाली डाइट है वो काम नहीं करेगी, यहाँ पे मेंटल डाइट काम करेगी। मेंटल डाइट क्या होगी? जैसे अगर हम फूड वाली डाइट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? हेल्दी खाओ, अनहेल्दी जंक फूड साइड रखो। तो ऑथर ऐसे कह रही है मेंटल डाइट में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स कंज्यूम करो, और नेगेटिव थॉट्स को साइड कर दो। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करने, तो ये हो जाएगी हमारी मेंटल डाइट। तो जो लोग भी कंप्लेन करते हैं अपने एक्सेस वेट के बारे में, ऑथर उनसे कहते हैं कि इस इशू को एक बार साइड में रखकर हम दूसरी चीजों पे काम करते हैं। They will often tell me they can't love themselves because they are so fat, as one girl put it, too round at the edges. I explain that they are fat because they don't love themselves. When we begin to love and approve of ourselves, it's amazing how weight just disappears from our bodies. तो एक लड़की को ऑथर ने ऐसे ही समझाया था कि पैट जो लोग होते हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्यार करना, खुद को अप्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो वेट है हमारी बॉडी से वो डिसअपियर हो जाता है। Sometimes clients even get angry with me as I explain how simple it is to change their lives. They may feel I do not understand their problems. One woman became very upset and said, I came here to get help with my dissertation, not to learn to love myself. To me, it was so obvious that her main problem was a lot of self-hate and hatred. And this permeated every part of her life, including the writing of her dissertation. She could not succeed at anything as long as she felt so worthless. She couldn't hear me and left in tears, coming back a year later with the same problem plus a lot of other problems. Some people are not ready, and there is no judgment. We all begin to make our changes at the right time, space, and sequence for us. I did not even begin to make my changes until I was in my 40s. और तो कह रही हैं कि जब भी ये लोगों को समझाती है कि सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो, तो ऐसे एक बार क्लाइंट ने कह दिया था कि मैं खुद को प्यार करना सीखने के लिए यहाँ पे नहीं आई। तो ऑथर उनके लिए ऐसा कह रहे हैं कि सबका अपना अपना टाइम होता है जब हम अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते अगर किसी ने हमारी बात नहीं समझी। जब उनकी लाइफ में वो समझने का टाइम आएगा तो वो खुद से समझेंगे। और ऑथर अपना भी एग्जाम्पल दे रही है कि अपनी लाइफ में वो चेंजेस कब बिगिन किए उन्होंने, जब वो 40s में थी।
द रियल प्रॉब्लम, हमने देखा कि द प्रॉब्लम वाज रेयरली द रियल प्रॉब्लम, तो रियल प्रॉब्लम क्या है? So here is a client who has just looked into the harmless little mirror, or he or she is all upset. And smile with delight and say, good. Now we are looking at the real problem. Now we can begin to clear out what is really standing in your way. I talk more about loving the self, about how, for me, loving the self begins with never ever criticizing ourselves for anything. तो क्लाइंट का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे वो मिरर वाली एक्सरसाइज थी ना, जिन लोगों ने उस दिन सेशन अटेंड नहीं किया था उनके लिए एक रिविजन, कि मिरर में देख करके खुद को कहना था आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू एज यू आर, इस तरह की कुछ एफर्मेशन कहना था। आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ यू, ऐसा कुछ था। तो इस मिरर में देखने के लिए हमने पहले उस सेशन में देखा था कि कुछ लोग तो देख ही नहीं पा रहे थे, किसी ने तो मिरर ही तोड़ दिया था, अपने आप से कोई कह नहीं पा रहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। एक क्लाइंट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिसने उस मिरर में देखा, तो ऑथर ने स्माइल करके कहा कि गुड, नाउ वी आर लुकिंग एट द रियल प्रॉब्लम, अब हम रियल प्रॉब्लम में देख रहे हैं। तो रियल प्रॉब्लम, हम खुद से कैसे प्यार करना स्टार्ट करते हैं, लविंग द सेल्फ कब कैसे स्टार्ट होता है? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं ना, तो हम खुद से प्यार कर रहे हैं, तो खुद को हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी चीज के लिए। और इसी पॉइंट से हमारा सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है। I watch their faces as I ask them if they criticize themselves. Their reactions tell me so much. Well, of course, I do all the time, not as much as I used to. Well, how am I going to change if I don't criticize myself? Isn't it relevant? तो इस तरह के रिएक्शन मिलते हैं कि हाँ, मैं खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ, हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता जितना पहले करता था। हाँ, और मैं खुद को कैसे चेंज कर लूँ अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज ना करूँ? यस, क्यों सब लोग क्रिटिसाइज नहीं करते क्या खुद को? तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। टू द लेटर आई आंसर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट यू। व्हाई डू यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तो जो लास्ट था ना, कि एक ने कह दिया था डजंट एवरीवन क्रिटिसाइज देमसेल्व्स, हर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। तो इसके लिए ऑथर ने आंसर दिया था कि हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? तुम्हारे साथ क्या गलत है? As they talk, I make a list. What they say often coincides with their ensemble often say this. Or they are too late, too early, too lazy, and on and on. Notice how it is almost always too something. तो एक होमवर्क दिया गया था इनिशियल वाले चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर के टाइम पर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में शुड लिस्ट वाला एक्सरसाइज आई शुड वाला होमवर्क था। वो आप में से कितने लोगों ने किया वो नहीं पता, लेकिन उसमें क्या करना था कि आई शुड, तो आई शुड को हमें फिल इन द ब्लैंक करना था जो जो हम चाहते थे। उसके बाद में खुद से पूछना था कि वाई शुड यू। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि आई शुड फिनिश दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल, तो फिर खुद से पूछना है कि वाई शुड यू। तो फिर हम खुद को आंसर करेंगे ना, बिकॉज दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो ऑथर कह रही थी कि वो आई शुड वाली लिस्ट कंप्लीट करने के बाद वाई पूछने के बाद में आई कुड में उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना था। तो आई कुड हैव डन दिस वर्क, तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए। तो जब हम शुड से कुड में शिफ्ट हो जाते हैं तो पॉइंट ऑफ पावर हमारे पास आ जाता है। तो कुड के बाद में भी हमने खुद से पूछना है कि अभी तक क्यों नहीं किया। तब हमें रियल रीजन समझ आएगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमें टास्क करना नहीं चाहते थे या फिर जो भी रीजन है, तब हम उस पर एक्ट कर सकेंगे। तो ऑथर वापस से उसी शुड लिस्ट के बारे में कह रही है कि जो लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं वो ज्यादातर किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनकी जो शुड लिस्ट होती है उसमें ही वो सारे आइटम्स अधिकतर रहते हैं। और ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लोग बताते हैं कि आई एम टू टॉल, टू शॉर्ट, टू फैट, टू थिन, तो ये हर एक चीज टू अति में जा रही है।
तभी लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। फाइनली वी गेट डाउन टू द बॉटम लाइन एंड दे से आई एम नॉट गुड इनफ। अब ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस सब कुछ बताते बताते एकदम लास्ट में लोग यही कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। हर्रे हर्रे, वी हैव फाइनली फाउंड द सेंट्रल इशू। अब ऑथर कह रही है कि यही है सेंट्रल इशू, यही है रियल प्रॉब्लम। दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव लर्न टू बिलीव दे आर नॉट गुड इनफ। तो खुद को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि खुद का ये बिलीफ सिस्टम होता है कि हम उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं जितना होना चाहिए था। वी आर नॉट गुड इनफ। Clients are always amazed at how fast we have gotten to this point. Now, we do not have to bother with any of the side effects that, like body problems, relationship problems, money problems, or lack of creative expressions. We can put all our energy into resolving the cause of the whole thing, not loving the self. तो ऑथर कह रही है, जब आप इस बॉटम लाइन में पहुंच जाते हो, जब आपको समझ आ जाता है आपके बिलीफ सिस्टम में ये जितनी चीजें आ रही है सारे क्यों आ रही है, सेंट्रल इशू यही है, खुद का बिलीफ क्या है, हम लोग खुद है। तो ऑथर कह रही है अब बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे बॉडी, रिलेशनशिप, मनी और जितने लाइफ में स्फेयर्स हैं उनके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉटम लाइन तक पहुंच चुके हैं। हमारी जितनी एनर्जी है वो हमें कहाँ लगानी है, जो इस चीज का कॉज है, नॉट लविंग द सेल्फ। हम क्यों खुद से प्यार नहीं करते हैं, उसका कॉज क्या है कि हम सोचते हैं कि हम इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं कि हम खुद से प्यार करें या हमें प्यार मिलना चाहिए। तो जब हमें ये कॉज पता चल गया है तो उसको डिसॉल्व करना है, उसको खत्म करने पे हमें अपनी एनर्जी लगानी है। चैप्टर 3, वेयर डज इट कम फ्रॉम? द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। जो पास्ट है, जो बीत गए, जो बीत गई सो बात गई, हिंदी में एक पोएम थी ना। तो ये पास्ट हैज नो पावर ओवर मी, जो भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसके ऊपर हमें इस पास्ट को नहीं रखना है, पास्ट को ओवर पावर करने नहीं देना अपने प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बनाता है। All right, we have gone through a lot of stuff and we have sifted through what we thought the problem was. Now we have come up with what I believe is the real problem. I feel we are not good enough and there is a lack of self love. From the way I look at life, if there is any problem, then this has to be true. So let us look at where this belief came from. How did it go from being a tiny baby who knows the perfection of itself and of life to being a person who has problems and feels unworthy and unlovable to one degree or another? People who already love themselves can love themselves even more. तो ऑथर कह रही है जैसे भी 2 चैप्टर्स पढ़े तो उसमें क्या देखा कि हम जितनी चीजें सोचते थे कि हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? हमारा ये बिलीफ सिस्टम कि वी आर नॉट गुड इनफ, हम खुद के बारे में खुद को जो कम आंकते हैं, ये है हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम। और ये इस प्रॉब्लम की वजह से जो सेल्फ लव है उसकी लैकिंग है हमारे अंदर, उसकी कमी है, हम खुद से उतना प्यार नहीं करते हैं। तो ऑथर कह रही है कि जिस तरह से वो देख रही है लाइफ की तरफ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है then it has to be true. Then so let us look at where this belief came from. तो अभी ये जो हमारा बिलीफ है ना that we are not good enough, तो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है उस पे हमें देखना है। तो ऑथर कह रही है जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस वक्त जो परफेक्शन होती है हमारे अंदर में, हम जो खुद से इतना प्यार करते हैं, उससे बड़े होते होते हम कैसे खुद को अनवर्दी, अनलवेबल ऐसा क्यों सोचने लग जाते हैं? जो लोग सच में खुद से प्यार करते हैं वो तो बड़े होते होते और ज्यादा खुद से प्यार करने लगेंगे ना। Think of a rose from the time it was a tiny bud. As it opens to full flower, till the last petal falls, it is always beautiful, always perfect, always changing. So it is with us. We are always perfect, always beautiful, and never changing. We are doing the best we can with the understanding, awareness, and knowledge we have. As we gain more understanding, awareness, and knowledge, then we will do things differently. तो रोज का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जब कोई रोज होता है तो वो जब से एक बर्ड से लेकर के फिर वो खुलता है, पूरा ब्लूम करता है, उसके बाद उसका जब तक लास्ट पेटल फॉल नहीं करता तब तक वो हमेशा ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ऑलवेज चेंजिंग ऐसा लगता है।
तो हम भी तो ऐसे ही है ना, हम भी हमेशा परफेक्ट है, ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड एवर चेंजिंग। कभी लाइफ में हम चेंज हुए बिना नहीं रह सकते। चेंज, परिवर्तन जीवन का नियम होता है, चेंज इज द भी कांस्टेंट। तो ये चेंज के साथ साथ में हम हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज क्यों नहीं की उस वक्त, ये चीज क्यों नहीं की। जब जिस बारे में आप सोच रहे हैं कि उस वक्त नहीं की, तो उस वक्त आपके पास जितनी नॉलेज थी, जितनी अवेयरनेस थी, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, उस हिसाब से आपने खुद अपना बेस्ट ही दिया है, और अभी भी आप अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। और जब जैसे जैसे हम और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस और नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम फिर चीज़ों को और डिफरेंटली और ज़्यादा सही तरीके से करने लग जाते हैं, पर हमेशा हम अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं, ये जो इस चैप्टर के एंड में मेडिटेशन थी उसे अभी करेंगे। ठीक है। क्लोज योर आइज एवरीवन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. I am always divinely protected and guided. It is safe for me to look within myself. It is safe for me to look into the past. It is safe for me to enlarge my viewpoint of life. I am far more than my personality, past, present, or future. I now choose to rise above my personality problems, to recognize the magnificence of my being. I am totally willing to learn to love myself. I am totally willing to learn to love myself. All is well in my world. ओम शांति। यू कैन ओपन योर आईज नाउ। एक लाइन के बारे में इसमें वापस से बताना चाहते हैं। आई एम टोटली विलिंग टू लर्न टू लव माई सेल्फ। मैं पूरी तरह से विलिंग हूँ कि मैं खुद से प्यार करना सीखूं। तो विलिंगनेस को लेकर ऑथर ने पहले भी बोला है कि जब हम किसी चीज को करने के लिए विलिंग होते हैं, तो उसी वक्त हमारा आधा काम, 50% वर्क हमारा पूरा हो जाता है। क्योंकि हम जब विलिंग होते हैं तो हम वो चीज कर पाते हैं। तो हम खुद से विलिंग हैं, खुद को सेल्फ लव हम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तभी तो हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन शेयर योर टेकअवेज नाउ। थैंक यू सो मच करुणा सिस्टर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छे से आपने बुक पढ़ा, धीरे धीरे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ को समझाया है आपने। सो थैंक यू सो मच। सब चीज ही बहुत देखने को मिला करुणा सिस्टर। साथ में हमारे साथ निशा सिस्टर भी थी, उन्होंने अभी जस्ट छोड़ दिया। मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल विद टेकअवेज, आई डोंट नो, उन्होंने छोड़ दिया। सो द रियल, मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, एंड जो एंडिंग था कि आई एम टोटली विलिंग टू लर्न टू लव माई सेल्फ, दिस इज द line which I think I should take for today, because स्टिल अभी भी वो पैटर्न्स रिपीट हो ही रहे हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के। नॉट फीलिंग गुड इनफ, ये एक लाइन है जो मुझे आज ज्यादा स्ट्राइक किया। मैंने उसको पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर मैंने आज रियलाइज किया कि सीरियसली दिस इज ट्रू, इट गोज ट्रू फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक दैट आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर वो चीजें फिर ना, जैसे ऑथर ने और एक चीज भी कहा था कि 20 साल के बाद भी आप ना अपने आप को उसी चीज में पाएंगे, क्योंकि आपने रियल प्रॉब्लम को तो ठीक किया ही नहीं। तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि सालों साल बीत जाते हैं, सेम पैटर्न्स रिपीट होता है, क्योंकि रियल प्रॉब्लम तो लैक ऑफ सेल्फ लव है।
तो उस पे तो मैंने कभी ट्रिगर किया ही नहीं, और अगर जाना भी है तो भी ठीक से ध्यान दिया नहीं। तो इसलिए दिस वाज अ आई ओपनर चैप्टर फॉर मी, वेरी नाइस। So for today, I'm totally willing to learn to love myself. And I even believe कि हम क्या करते हैं ना, हर कोई की तरफ भी ध्यान देते हैं। हर कोई की तरफ मीन्स जो इम्पोर्टेंट नहीं होते प्रेजेंट में, मतलब बिना मतलब की डिस्ट्रैक्शंस, लाइक टीवी हो गया, या नेबर के पास बार बार जाना हो गया, या टेरेस पे जाना हो गया, मीन्स जब जरूरत नहीं है तब ये डिस्ट्रैक्शन से भी हम हटेंगे तो सेल्फ लव पे ध्यान जाएगा। ऐसे सेल्फ को छोड़ के हम दूसरी चीजों में भागने लग जाते हैं, तो उससे बचना है ताकि सेल्फ लव डेवलप हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। और आप इतने जो एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ में सारी चीजें कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्राइक करती है वो चीजें दोबारा जो आप रिपीट करते हैं। और ये जो क्रिटिसिज्म वाली चीज आपने कही कि वापस वापस पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो वो एकदम सही आपने बोला है। क्योंकि हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती है। हम ये जो बुक्स में पढ़ रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, वो सब चीजें जब करेंगे समझेंगे तो और ज्यादा डेप्थ में हमें समझ आएगा हमें कहाँ कहाँ काम करना है। और उसके लिए आपने जो बोला कि डिस्ट्रैक्शंस से हटेंगे तब तो हम रियल प्रॉब्लम पे ध्यान दे पाएंगे और हम वो सारी चीजें कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच करुणा सिस्टर। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग एंड सक्सेस Lots of love ऑल and इन blessings, success to you, टू and यू all the ऑल्सो। happiness in the world. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल all heal together and shine in this world and be a successful instrument of God. Shine and radiate the world. Yeah.